Let's start the interpretation of chapter number 7, Glimpses of India. We'll take the first part, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. Discuss in class. What images of people and the places come to your mind when you think of our country? Means, what do you think when you see the different types of people in India? Especially if you see a person from Northeast who is not having the faces like us. What do you feel about them? You think that they are not from India. But yes, you must know that there are some persons like in Leh Ladakh, then you have in Sikkim or in Arunachal Pradesh, those whose faces are not similar to us, but they are Indians. So you must go there and see. And for this particular purpose, this chapter is being written that your India is a very diversified country in terms of the dress of the people, the face and the language of the people, the traditions they follow, but they are still one, or there is unity in diversity. Now, what parts of India have you lived in or visited? Means how many parts of India you have visited so far or might have lived over there. How many parts? आप भारत के कितने हिस्सों में रहे हो या कितने राज्यों में रहे हो या वहां पर गए हो? Can you name some popular tourist destinations? Can you name certain popular tourist destinations? क्या आप कुछ लोकप्रिय लोग जहां घूमने जाते हैं, टूरिस्ट, पर्यटक, डेस्टिनेशंस जो जगह होती हैं, क्या वहां पर गए हो किसी दूसरी जगह पर, अच्छी सी जगह पर? Number 3, you may know that apart from British, the Dutch and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. क्या आपको पता है कि अंग्रेज़ों के अलावा डच, फ्रेंच और पुर्तगाल के लोग भी यहाँ पर आए थे अपने व्यापार के लिए, या उन्होंने जो है अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी, कॉलोनीज स्थापित की थी भारत में? क्या आपको पता है? नहीं। गोवा को याद करिए, गोवा एक ऐसा ही राज्य है. Can you say which parts of India show French and Portuguese influence? क्या आप बता सकते हैं भारत का वो कौन सा हिस्सा है या कौन सा राज्य है जहां पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का प्रभाव रहा? यस, ये गोवा ही है जहां की कल्चर या सब कुछ जो है बाहर से मिलता जुलता है. Can you say which part of India grow tea और कॉफ़ी? क्या आप बता सकते हैं कि भारत का वो हिस्सा जहां पर कॉफ़ी या चाय की ज़्यादा खेती होती है, कहाँ पर होती है? यस, चाय असम में होती है, कुछ नीलगिरी हिल्स पे भी होती है. कॉफ़ी प्लांटेशंस आपकी जो है ये कुर्ग साइड में है, देन आपकी नीलगिरी हिल्स पे है, मैसूर के पास भी होती है. लाइकवाइज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ लेट मी कम ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, A Baker from Goa. This is a pen portrait, means pen picture. एक चित्रण है आपके सामने कलम के द्वारा लिखा हुआ of a traditional Goan village. Goan means of Goa, गोवा के एक गांव का. Village baker, baker means हिंदी में इसको नानबाई बोलते हैं, जो बेकिंग का काम करते हैं, जो बिस्किट, केक या जो पेस्ट्रीज और ये आपकी जो है बेकिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं, बिस्किट बनाने की जो फैक्ट्री होती हैं, उसमें जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बेकर. who still has an important place in his society. वहाँ की सोसाइटी के अंदर, वहाँ के समाज के अंदर आज भी, गोवा के समाज के अंदर इनका एक विशेष स्थान है बेकर्स का. जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ हरियाणा में पहले भड़बूजे होते थे, वो खील और जो है ये हमारे लिए भाड़ के अंदर पकाते थे, पर आजकल वो जो है प्रथा हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है.
Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old age Portuguese days. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. मीन्स हमने अपने बूढ़ों से सुना है, often heard, प्राय हमने ये बात करते हुए उनको सुना है. Reminiscing, in fact, the correct pronunciation is reminiscing. Reminiscing nostalgically. Reminiscing means to write or to say something about the past activity that was quite pleasurable for you. एक कोई खुशी का पल जो आपके पुराने दिनों से हो. Nostalgically having mixed feeling of the past. कोई भी जो है अच्छी और खुशी देने वाली या उसमें कुछ गमगीन बात भी हो सकती है. That is called nostalgically. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमने अपने बूढ़ों से सुना है याद करते हुए कुछ अच्छी यादें जो उनके पुर्तगीज दिनों की होती थी. मीन्स जब पुर्तगालियों ने वहाँ पर शासन किया था, हमने अपने ये माइंड इट. द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज एलूजियो रोड्रिग्स. ही इज़ ए गोवन पर्सन, ही इज़ फ्रॉम गोवा. रोड्रिग्स जो टाइटल होता है ये पाया जाता है गोवा के अंदर. जब आप वहाँ पे जाएंगे गोवा घूमने के लिए, वहाँ की ओपन कल्चर है, वहाँ पे जो है ये टूरिज़्म का बहुत बड़ा एक हब है इंडिया का. जब भी आपको लाइफ में कुछ एक फ़न या प्लेजर चाहिए तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा. वहाँ पर जाके आप जो है काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. मैंने अपने बूढ़ों से या अपने बड़ों से पुर्तगालियों के दिनों के खास करके वो अच्छे दिन सुने हैं. The Portuguese and their famous loaves of bread. पुर्तगाल, वो पुर्तगाली और उनके जो फेमस रेप्यूटेड या वेरी पॉपुलर जो loaves of bread होते थे, पाव रोटियां होती थी, पाव जिसको बोलते हैं, वो मॉर्निंग में आप खाते हैं ना जिसमें पाव भाजी बनती है, भाजी भरी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड loaves of bread. और वो ब्रेड की या पाव की जो है रोटियां. Those eaters of loaves might have vanished. Those eaters, उनको खाने वाले of loaves, उन पाव को, might have vanished, अब धीरे धीरे कम हो गई हैं या ख़त्म हो गए. Vanish means disappear, गायब हो जाना. अब वो नहीं रहे, but the makers are still there, परंतु उनको बनाने वाले आज भी हैं. We still have amongst us the mixers, आज भी हमारे बीच में, amongst means हमारे बीच में. It is a use for more than one person. Mixers, वो आपस में मिलाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, मोल्डर्स, उनको शेप देने वाली. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो आज उनको पकाते हैं, मीन्स उनको बनाते हैं. कहने का मतलब ये है कि वो मशीनें, वो सारा सामान आज भी है और उनको बनाने वाले भी हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. फर्नेसेस, भट्टियाँ. दोज age old time tested furnaces still exist. Means still old age, काफ़ी पुरानी, time tested, समय के साथ टेस्ट की हुई, मीन्स काफ़ी पुरानी, जानी मानी, आज भी वो सारी की सारी भट्टियाँ वहाँ पर विद्यमान हैं. The fire in the furnaces has yet not been extinguished, and the fire in those furnaces has not yet been extinguished. not yet been extinguished. आज भी जो है वो उन भट्टियों में आग नहीं बुझी है. The third and jingle off. The third, पटकने की आवाज़. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo, बांस. थर्ड, पटकने की, और जिंगल, झंझनाहट की आवाज़, जिंगलिंग. उसकी जो पटकने की आवाज़ है और जो मधुर सी एक उसकी जिंगलिंग की आवाज़ होती थी. ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू,
जो बेकर अपने साथ एक बांस रखता था, उसकी जो आवाज़ थी, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग अप्रोचिंग, उसके आने की खबर देती थी शुरू मॉर्निंग में। हेराल्डिंग हिज अराइवल, उसके आगमन का एक प्रतीक होती थी। हेराल्डिंग मीन्स इट्स, ये एक तरह का प्रतीक, ओमन, साइन, साइन ऑफ हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी वो किन्हीं जगह पर सुना जा सकता है। आपने देखा होगा वो पॉपकॉर्न वाले जो आते हैं वो एक ही ट्यून बजाते हैं, वो ट्यून जो है उसमें बजती रहती है, उसके एक स्पीकर टाइप में। Maybe the father is not alive, but the son still carries the family profession. Maybe his father may not be alive, जो वो बेकर है उसके पिता अभी जिंदा नहीं है, परंतु आज भी जो है वो उसका लड़का उस पेशे को आगे बढ़ा रहा है। प्रोफेशन, पेशा, वेकेशन। Those bakers are even today known as padeir in Goa. आज भी इन बेकर्स को गोवा के अंदर PADER, पदेर भी है, पेदर भी लिखा हुआ है, मीन्स इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, सो वी कैन से पदेर इन गोवा। इनको आज भी जो है बेकर्स को गोवा के अंदर पदेर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, मीन्स ड्यूरिंग माई young days in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. The baker used to be our friend, dost, companion, sathi, guide, margdarshak. Means he used to be one sort of a versatile personality for us. He used to come at least twice a day. Means he used to come at least twice a day. कम से कम 2 बार आता था वो दिन में. Once when he set out in the morning on his selling ground, एक बार जब वो set out, starting to start something, जब वो सुबह जो है अपनी यात्रा शुरू करता था बेचने के लिए, selling ground, and then again when he returned after emptying his huge basket, और दोबारा जो है जब वो अपनी emptying, खाली करना, खाली करके अपनी बास्केट, ह्यूज बास्केट, बिग बास्केट को जो है वापस आता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. जो उसकी थर्ड, पटकने की आवाज़ होती थी उसके बैम्बू की, जिसमें जिंगलिंग साउंड होता था, झंकार टाइप होती थी, वो उससे हम अपनी स्लीप से उठते थे। एंड वी ran टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते थे और उसका अभिवादन करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? ऐसा क्यों होता था? क्या ये जो है लोफ, लोफ मीन्स उस ब्रेड लोफ, उस पाव के लिए होता था? Not at all. This was not like that. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. Paskin, Bastin, जैसे हमारे यहाँ होता है फलानी फलानी. There is no word meaning of this one. Paskin and Bastin means फलानी फलानी. जो भी घर की नौकरानी होती थी उसके द्वारा, maid servant, नौकरानी होती थी, वो खरीद लेती थी। What we longed for were those bread bangles which were chose carefully. हमारी यही इच्छा रहती थी, longed, wish, कि हमारी जो ब्रेड बैंगल्स हैं वह those bread bangles which we chose carefully. हम अपने लिए जो है ब्रेड बैंगल्स की इच्छा करते थे। ये जो है स्मॉल चिल्ड्रन थे तो ये ब्रेड बैंगल्स को लाइक करते थे, जिसको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से लिया जाता था। समटाइम्स दिस वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये जो है मीठी ब्रेड भी होती थी, एक स्पेशल तरीके से तैयार की हुई। द बेकर मेड हिज अ म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग। बेकर जब आता था तो बड़ी ही उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी, झंग झंग बजाते हुए, वो जो थर्ड था उसका बैम्बू थर्ड, उसको पटकता हुआ और जंग जंग करता हुआ। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, अपने जो है बैम्बू के स्टाफ मीन्स कड़े टाइप के हिस्से को पटकता हुआ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो सपोर्ट करता था अपनी बास्केट को जो उसके सिर पर रखी हुई होती थी, एंड द अदर बैंग्ड
and other banged the bamboo on the ground. और दूसरे से वो banged होता है hitting hard, और दूसरे से वो जो है काफ़ी जोर से उसको पटकता था। किसको? बैम्बू जो उसने हाथ में लिया हुआ होता था, बांस। He would greet the lady of the house with good morning. वो लेडी ऑफ द हाउस को गुड मॉर्निंग कह के जो है उसका अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। देन ही वुड प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल, मीन्स खड़े टाइप के वो बांस के बम्बू। आज भी जो ये हमारे यहाँ पे पाव भाजी वगैरह बेचते हैं, और वो जो होती है वो सेवियाँ टाइप ही बेचते हैं, वो जो है वर्टिकल बैम्बू पे रखते हैं उसको। वे किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था, पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ी ही डांट फटकार के मार के। एंड द लोज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो पाव होती थी उनको घर के सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम ऐसे सरेंडर नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और ए parapet डीप इन द बास्केट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम ऊपर चढ़ जाते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, या तो हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, या पैरापेट, एक छोटी दीवार पैरापेट के ऊपर चढ़ जाते थे और फिर उसकी बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. कुछ भी हो, आज भी मैं जो है उनको, recall means to remember, दोबारा से याद करना, typical fragrance of those loaves, वो जो विचित्र टाइप की, स्पेशल टाइप की जो फ्रेगरेंस थी उन लोव्स की, उनको मैं दोबारा से याद करता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़े आदमियों के लिए पाव होती थी और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स होती थी। बैंगल्स, चूड़ियाँ नहीं, ब्रेड बैंगल्स बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली, और उसके बाद जो है हम इतनी चिंता नहीं करते थे कि हम अपने दांतों को ब्रश करें या उनको वॉश करें प्रॉपर्ली। एंड वाई शुड वी, और क्यों करें? वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन जो है इतनी दिक्कत उठाएगा, प्लक करेगा मैंगो लीफ को। मैंगो लीफ की वहाँ पे दातुन होती है, ध्यान रखना। साउथ में, बिहार वगैरह में अमरूद शहतूत की जो है दातुन करते हैं, बट हमारे यहाँ केवल कीकर की और नीम की ही दातुन होती है। मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन जो है आम के पत्ते तोड़ेगा ब्रश करने के लिए, कौन इतनी दिक्कत उठाएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों ये जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, जो हम गर्म चाय पीते हैं कुल मिलाकर के, आफ्टर ऑल मीन्स कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हम चाय पीते हैं वो हमारे पूरे के पूरे अंदर से जो है मुंह को वॉश कर देती है बहुत अच्छी तरह से। तो उसके साथ गर्म चाय ले लेंगे और वो साफ़ कर देगी। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि हम जब बच्चे थे तो देखिए कैसी कल्पनाएं करते थे कि छोड़ो भाई, कौन जो है दातुन करेगा, कौन क्या करेगा, कौन आम के पत्ते तोड़ेगा। टाइगर कभी कोई जो है ब्रश थोड़ा करता है, वो तो ऐसे ही रहता है। लेट मी चेंज ओवर टू द नेक्स्ट पेज। Now this is a tradition that what for this is necessary. You might have seen there that laddu is an indispensable part of North Indian ceremonies. जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ लड्डू हर एक सेरेमनी में आपको मिलेगा। तो जैसे साउथ इंडिया में होता है, मैं कर्नाटका वगैरह में रहा हूँ, मैं हैदराबाद में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा बैंगन की सब्जी जो है दैट इज़ इंडिस्पेंसिबल, इसको ज़रूर बनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या चीज़ किस टाइम पे ज़रूरी है वो देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं रहता, वो निरर्थक होती हैं अगर जो है स्वीट ब्रेड नहीं बनाया जाए, जिसको बोल कहते हैं, BOL। स्वीट ब्रेड इज बोल एंड दैट इज बीइंग सर्व्ड और प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द मैरिज गिफ्ट्स।
Just as a party or feast loses its charm without bread, and for a party or a feast, जो बड़ा सा खाना आयोजित होता है, उसमें जो है ब्रेड हमेशा आपको मिलेगा, उसके बगैर वो पॉसिबिलिटी नहीं है. Not enough can be said to show the important a baker can be. Not enough can be said to show how important a baker can be for village. और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना ज़रूरी होता है गांव के लिए बेकर. मतलब बेकर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है गांव में. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. और जो घर की मालकिन होती है, लेडी ऑफ द हाउस, मस्ट प्रिपेयर, उसको बनाना ही होता है हर हालत में सैंडविचेस जब उसकी डॉटर्स की एंगेजमेंट होती है. मीन्स डॉटर की एंगेजमेंट पे लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स sandwiches. Sandwich you everybody is aware of. Cakes and bolinaras are must for Christmas as well as other festivals. केक और बोलिनास, बोलिना भी जो है एक स्वीट जो है डिश है वहाँ की, ये ज़रूरी है जो कि क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पे बनाई जाती है. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो इस प्रकार से जो बेकर की जो एक फर्नेस है, भट्टी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांव के अंदर. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. मैरिज गिफ्ट्स इज स्वीट ब्रेड दैट इज़ नोन एज बोल. देन party or feast that carries bread. Then daughter's engagement, it's sandwich, and on Christmas and other festivals, cakes and bolinas. Moving on to the next one. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. जो बेकर होता था या ब्रेड सेलर होता था उस दिनों, दे यूज टू हैव ए स्पेशल ड्रेस जिसको कबाई के नाम से जाना जाता है. कबाई इज ए स्पेशल ड्रेस ऑफ पदेर. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज. ये एक सिंगल पीस होता था. मीन्स एक ही जो है ये ड्रेस होती थी, उसमें बीच में जो है जोड़ नहीं होता था. सिंगल पीस जो है होता था फ्रॉक टाइप, जो कि उनके नीज तक आता था, घुटनों तक. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length. और हमारे दिनों में, हमारे बचपन के दिनों में, हमने बेकर्स को एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहने हुए देखा, एक शर्ट और पैंट पहने हुए देखा, which was shorter than full length, जो पूरी लेंथ से थोड़े छोटे होते थे. Once फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट्स. और एक तरह से वो जो है आजकल जो पहनते हैं कैपरी, वो कैपरी टाइप की होती थी. इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like Fedor. आज भी anyone who wears a half pant, आज भी जब कोई आधी जो है वो निक्कर टाइप कोई पहनता है जो उसके ठीक घुटनों तक पहुंचती हो, तो वो जो है एक उसके ऊपर एक टिप्पणी आती है, या वो उसके एक टिप्पणी उसके ऊपर कॉमन है कि वो जो है एक पदेर जैसा दिखता है. ए बेकर यूजुअली कलेक्टेड इट बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. एक बेकर कुल मिलाकर के यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, अपने बिल को, जो उसका मंथली बिल होता था, उसको कलेक्ट करता था मंथ के महीने के आखिरी में. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और जो मंथली रिकॉर्ड होता था, अकाउंट्स होता था, उसको जो है कहीं दीवार पे लिख दिया जाता था. वॉल इन पेंसिल, माइंड इट, इन पेंसिल, पेंसिल के द्वारा. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. बेकिंग जो है वास्तव में पुराने दिनों में एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था. प्रोफेशन मीन्स बिजनेस या वोकेशन, धंधा. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट. और ये जो बेकर होता था और उसकी जो फैमिली होती थी, ये कभी भूखे नहीं रहे. स्टार्ट. He, his family, his servants always looked happy and prosperous.
वो उसकी परिवार और उसके जो सर्वेंट्स होते थे always looked happy and prosperous, और ये हमेशा जो है खुश और जो है खुशहाल नजर आते थे. Prosperous, प्रगतिशील, खुशहाल. Their plump physique, उनका मोटा ताजा जो शरीर होता था, फिजिक बनावट, was an open testimony to this. इसके सीधे तौर पर प्रमाण होता था. Testimony means proof. Used to be a good proof of that one. Means they were of a good build and of a good physique. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ तक कि आज जो है, अगर कोई जो है कटहल जैसे दिखने वाला जो है मोटा ताज़ा, जैकफ्रूट इज कटहल, आपने सभी ने खाया होगा कटहल. कटहल जैसे दिखने वाला जो है मोटा ताज़ा जो है किसी का शरीर हो तो उसको जो है आज के दिन ऐसा माना जाता है कि ये तो कोई जो है बेकर टाइप होगा या पदेर टाइप होगा. So with this I finished this chapter. There are certain word meanings also. Plump physique, pleasant fat body, open testimony, public statement about a character or equality. Then these are a match of the following. As a marriage gift, you can see over here we have been, and there and that one in question answers, and on the color page also this has been covered in a box, so you must go through. And with this I finished the first part. Hopefully this is clear to you. You should also go through the interpretation very diligently and attentively.